Hi everyone, welcome to Cave Tales, a spiritual podcast series. So today is episode number 8 and we have a very special guest from Mumbai, Maharashtra with us. So welcome Srishti to Cave Tales podcast. Thank you, Kajal. Namaste to everyone, to you, Kajal, and big thank you for calling me over. First of all, we are so grateful. You have accepted our invitation and आप यहाँ पे आए हो to share your knowledge and your experience with our audience. So first of all, thank you so much for accepting my invitation. And Srishti, just introduce yourself to our viewers so they'll get to know about yourself and about your business. Okay, hi, I'm Srishti Jetmalani. I'm a Sindhi. So, yeah, business somewhere runs in our blood. But ये बहुत later stage पे आया. I was only and only into spiritual to get myself out from certain zones. कुछ Hmm. एरियाज हैं लाइफ के जो पॉलिश करना जरूरी था. एक स्पिरिचुअल कॉलिंग, आई मीन काजल यू रिलेट टू दिस, के एक स्पिरिचुअल Right. कॉलिंग आता है व्हेन यू आर Absolutely. leading your normal life and then suddenly you tend to get attracted to these modalities and then क्रिस्टल से प्यार होने लगता है. जो नॉर्मल क्रिस्टल के थे, हाँ ठीक है, शोपीस है, प्लेट्स हैं, बर्तन है, या लाइक ठीक है, सडनली यू गेट अट्रैक्टेड टू दी स्टोन्स जो Hmm. आज तक नहीं सोचा था कि दे एग्जिस्ट ऑल्सो. सो या दोज वर द areas of life wherein I got my shift from not a spiritual person to entering into spiritual modalities. And I have my own Instagram page, my own setup with the name Srishti Vitality. Hmm. नया नया YouTube चैनल भी चालू किया है, but nothing much as yet, Hmm. because you see it is better to take one step at a time. So I Right. started with Instagram, I started with my own personal clients, to going on online portals, to now making my own setup completely. Hmm. So we are into educating different modalities, energy related modalities. We are into healing. We are into dealing of high quality crystals. So Right. काफी हाथ फैला हुआ है, बट एट द एंड ऑफ द डे नॉट टू फॉरगेट योर ओन प्रैक्टिसेस. जब तक खुद को क्लेंस नहीं करेंगे वो नहीं आएगा, नेक्स्ट डे का ड्राइव नहीं आएगा. Right. सो वो So, चालू है. इस जर्नी से आने से पहले आप क्या करते थे? Little bit about your, back story. Okay, it's been a major shift. I am a biotech engineer, Okay. and I started with being a medical research associate in a very well-known hospital. Hmm. Then I was a patient counselor in a very well-known pharma company. Okay. And to a lot of people's surprise, I was a COVID warrior. I was into COVID testing. Okay. And उसके भी scientific supports and all, पूरा COVID lab में ही रहना and all of that. Hmm. And just when COVID was about to, या COVID चला ही गया था, Hmm. that was when I suddenly got my news that I'm carrying my daughter, that I was pregnant. So I Okay. had to leave the COVID job, obvious reasons. Pregnancy में कहाँ samples में जाएंगे ना. So Absolutely. yeah, that is when after pregnancy, in fact, when I got to know pregnancy, तब मेरा यहाँ पे turn हुआ towards spiritual. Wow. मतलब it's like a 360 degree of transformation. मतलब from a biotech engineer to a spiritualist. This is like मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे भी चेंजेस आ सकते हैं एंड आप इस प्रोफेशन में आ सकते हो आफ्टर डूइंग सो मच गुड वर्क इन योर फील्ड राइट सो सृष्टि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मैंडेटरी क्वेश्चन जो भी कोई आता है हम पूछते ही हैं बिकॉज पॉडकास्ट इज लाइक बहुत ज्यादा फेमस और करंटली बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट कर Actually. रहे हैं so I hope that this is your first podcast series with us so how do you feel about this podcast जब आपने सुना कि मैंने आना है and आपका क्या perspective था So podcast to me till now was something जो मैं सिर्फ follow कर रही हूँ, सिर्फ सुन रही हूँ. And then Hmm. when I get a call from you कि सृष्टि चलो करते हैं, and I was like, OMG. Okay, I never knew कि I can sit on the other side of the table also.
हम्म एंड इट इज वेरी नेसेसरी, आई फील कि ये जो आप कर रहे हो ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बिकॉज इतना कोई कर नहीं रहा है आई थिंक हम्म स्पिरिचुअल इसमें। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी पेज डूइंग सो मेनी like informative podcasts, and I myself I follow your YouTube channel, तो इतने अलग modalities वालों से करना पॉडकास्ट, इट इज रियली नेसेसरी कि यार कोई तो वो स्टेप ले। हम्म आई एम वेरी हैप्पी, रादर वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस, कि पता नहीं फर्स्ट टाइम है, नर्वसनेस तो बनती है। एब्सोल्युटली एक्साइटेड बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम यू, या वो यहाँ बताना। Yeah. So the main vision of this podcast series is like to create spiritual awareness as people, they don't know about these modalities or they have certain myths regarding these modalities. So this was the prime motive of these podcasts. बट अब इवेंचुअली यहाँ पे मैं भी सीख रही हूँ बहुत सारे लोगों से एंड लोग भी सीख रहे हैं एंड नॉलेज क्रिएट हो रही है आप जैसे लोगों के साथ हम कांटेक्ट कर पा रहे हैं सो दिस इज लाइक एक सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाती है कि बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं हम सो सृष्टि you are doing spiritual modalities from past 3 to 4 years I think right 3 years, so yes, what are 3 years, the yes. various different modalities you are providing services relating to those modalities कौन सी हैं So I am actively providing services in crystal healing, हम्म tarot reading, ओके Reiki, ओके and your candle spells. So कैंडल स्पेल्स का एक्चुअली कैसे है ना, कुछ स्पेल्स भी होते हैं, कुछ कैंडल हीलिंग भी होती है यूजिंग द सेम स्पेल्स। सो आइदर यू विल डू ओनली स्पेल्स, लाइक क्लाइंट से आपने ले लिया and, उनके जो भी डिटेल्स हैं, उनके इश्यूज हैं, एंड देन उस हिसाब से आपने कैंडल स्पेल कर दिया। जो हम्म हम क्रिस्टल हीलिंग में करते हैं वही सिमिलर लाइंस पे यू कैन डू विद अ कैंडल, सो दैट्स कैंडल हीलिंग राइट इन अ नटशेल। तो या दीज 3-4 आर मेजॉरिटी, but not so actively into, oh yes, I forgot my Akashic, sorry, I forgot my Akashic। Akashic records भी clients को अभी actively ले रही हूँ मैं। ओके In fact not so active but very much into practice right now is my PLR also, past life regression। ज्यादा clients नहीं लिए हैं हम्म but हाँ, एंड नॉट सो एक्टिव मोड पे अगर आप पूछोगे, जो मेरा थोड़ा बैक स्टेज चला गया है, so that's my green tarama, my master merlin, हम्म and runes। runes या का somehow प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, बट या दे आर देयर, दे आर देयर मेरे गाइडेंस के लिए। आई चूज देम फर्स्ट। बड़ा क्विक सा डिविनेशन टूल है, या सो इट गिव्स यू वेरी क्विक आंसर्स। या एब्सोल्युटली सो मतलब एक रूल्स का अलग ही लेवल है टैरो का अलग है रूल्स का अलग है एंड फॉर योरसेल्फ अगर हमने गाइडेंस पिक करनी है तो रूल्स आई थिंक बहुत अच्छी गाइडेंस बता देते हैं डेली बेसिस पे सो आजकल आप अगर देखो 10 years बैक हम सोचे जब हम पढ़ते थे हम मास्टर्स कर रहे थे सो ऐसा कुछ था नहीं कि कोई स्पिरिचुअल करियर भी हो जाएगा इन फ्यूचर राइट so sudden rise जो हुआ है in the spiritual industry so what's your opinion what's your perspective about this sudden rise सो काजल, आई रियली हैव वेरी डिफरेंट थॉट ऑन दिस। मैंने काफी लोगों से, मैंने खुद ने ये सवाल पूछा कि अरे यार सडनली यू स्टार्टेड सीइंग इंस्टाग्राम पे इतने सारे दिख रहे हैं, फेसबुक पे इतने सारे दिख रहे हैं, बट देन right द वे आई लुक एट इट इज पर्सनली कि मे बी बिकॉज आई गॉट इन टू दिस फील्ड, hmm सो सडनली द यूनिवर्स इज नाउ शोइंग मी दोज थिंग्स कि मे बी एज अ मोटिवेशन कि करो, ये भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, तुम भी कुछ अच्छा करो। और yes मे बी वो हमारे एआई टूल्स आ गए हैं, अब तो आईटी इज फ्लरिशिंग नेक्स्ट लेवल, तो एआई टूल्स आ गए, मे बी इट इज दैट वी स्टार्टेड गोइंग देयर कि सडनली हमको सब कुछ इतना ज्यादा दिख रहा है। शायद right पहले से था, मे बी right वी वर नॉट अवेयर अबाउट इट, दैट इज वाई वी डिडंट नो कि इतना है। hmm बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इट वाज लिटरली एज इफ बस एक आया दिमाग में कि चलो इससे शायद मन की शांति मिले, दिमाग की शांति मिले। सो hmm इट जस्ट हैपेंड out of nowhere, it just happened, so maybe that is I am taking it as a universal sign कि सब मुझे उसी चीज के आसपास का दिखा रहे हैं कि करो, तुम भी करो, शायद तुमको कुछ मिल जाए, करो।
सो राइट। मे बी इट वॉज देयर, मे बी इट वॉज नॉट देयर। अब तो वो एआई टूल्स वाले जाने कि वो पहले था कि नहीं था। राइट, मतलब ये चीज तो मैं भी देखूंगी, लाइक 2012 और 13 में फेसबुक पहले आई थी, धीरे धीरे इंस्टाग्राम शायद अभी 4-5 इयर्स से ही ज्यादा चल रहा है। बट जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने कभी इतना देखा नहीं, मतलब एस्ट्रोलॉजी ज्यादा चलती थी। बट अब वेस्टर्न मोडालिटीज बहुत ज्यादा क्रेज है इन इंडिया, एंड इट इज ग्रोइंग इंडस्ट्री, धीरे धीरे बढ़ भी रही है और इसका फ्यूचर भी है अल्टीमेटली। सो इतना I'll tell भी you something, Kajal, on that. Sorry to cut you, but just one thing. कि tarot ना, I I knew tarot existed at least 10 years down the lane. I mean, in my past, down the lane, नहीं, sorry. In my past, हम्म 10 years पहले भी मेरे को टैरो पता था. इनफैक्ट आई वाज वेरी इंट्रीग्ड कि यार ऐसे कैसे ना कि कार्ड्स ऐसे किए, एंड व्हाट आर दीज ड्राइंग्स, दे आर सो डिफरेंट, ड्राइंग समझ में ही नहीं आ रही है क्या है, एंड क्या राइट आराम से दे आर टेलिंग मी एग्जैक्टली व्हाट इज देयर. सो इट राइट। वाज देयर, बट या नाउ आई कनेक्ट विथ यू दैट सडनली हाँ वो बढ़ गया है पहले कंपेयर टू व्हाट आई हैड सीन 10 years ago. हम शायद इतना अवेयर भी नहीं थे इन सब के बारे में, हम तो अपनी पढ़ाई में थे, या जो भी लोग होंगे अपने अपने प्रोफेशन में अपने अपने करियर बनाने में थे। बट पता नहीं था लाइफ कैसे टर्न लेगी और हम कहाँ पे कैसे अपना प्रोफेशन चेंज करेंगे। सो सृष्टि, जब हम बात करते हैं, जैसे आप बात कर रहे हो कि पहले हम पढ़ाई कर रहे थे, अपने करियर के बारे में सोच रहे थे, सडनली आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए। कुछ एक होता है ना, मेजर पॉइंट होता है कि मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी जॉब से हैप्पी नहीं थी, तो मुझे कुछ चाहिए था कि मैं कुछ करूं, राइट। एंड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और बहुत ज्यादा हेक्टिक था स्केड्यूल, सो इसलिए मैंने टर्न किया, चेंज किया, और स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में है। सो ऐसा कोई पॉइंट होता है जहां पे आप चेंज करते हो, सब कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। तो स्पिरिचुअलिटी के आने का कोई पॉइंट, ऐसा मोड जो आप शेयर करना चाहो कि जिसने लाइफ चेंज की है। So, I think I would mark two events. One, when I actually started spirituality practicing, maybe on myself, you can say, या बस एक जनरल शांति क्रिएट, एक लेयर बना लेते हैं हम कि भाई हमें थोड़ा अब एक लेयर बना लेना है अपने अकाउंट. तो जब लेयर बनाना स्टार्ट किया तब का एक इवेंट है, एंड दिस सेकंड इवेंट इज जब जोर शोर से लग गए इसमें. So the हम्म first event was I was going through a very hard, very, very, very hard phase in my family. हम्म Somewhere I don't want to go back. So या a very, very hard phase in my family, and in fact, everything around was so disturbed. And my click was कि I was like बस यार 2 मिनट शांति चाहिए. And I somehow, that is I'm saying कि वो signs feel होते हैं. Somehow I got to know कि यार ये भी एक करके देखो. Like meditation से start हुआ, हाँ and पूरा आसपास सिर्फ chaos है. एंड हम्म बट आई वॉज एबल टू टच वुड, आई वॉज मैजिकली एबल टू कनेक्ट. हम्म कि मेरे बाजू से कोई ऐसा बोलते ना, ढोल नगाड़ी भी बजाएगा, मैं मेरे इसमें मेडिटेशन में गुम होती थी. आई डोंट नो हाउ दैट वाज पॉसिबल, बट दैट वाज माय साइन कि इफ आई एम एबल टू डू दिस, लेट मी प्रैक्टिस. शायद इसी से ही थोड़ा ब्रेन फंक्शनिंग मेरा नॉर्मल हो सके कि मैं सब नेगेटिव एंड केओस से बाहर निकल के कुछ या अपना लाइफ पाथ सोच सकूं. राइट So that was when I started, like literally started the 3 years ago वाला event. हम्म And since 3 years self पे clients पे तो 2 years, 1 year हम्म self पे था. Since 2 years I'm with clients. So जब जोर शोर से गई was my pregnancy. So एक normal Indian norm रहता है that you are pregnant, you have to put the best of thoughts in your child, हाँ and अच्छा सोचो, अच्छा खाओ तो वो बच्चे को लगेगा. So with that मैंने बोला चलो अभी थोड़ा. एंड दैट वाज व्हेन टैरो सामने आया कि देयर वाज दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न टैरो. एंड देन अपने 10 साल पहले वाला इवेंट याद आया कि यार तभी कितना इंटरेस्टिंग लग रहा था, चलो करके देते हैं. करके एंड देखते द हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड माय टीचर इज आई एम प्रेग्नेंट, कैन आई डू दिस. हाँ, या वो ये भी एनर्जी होता को है लोग कनेक्ट हैं करना होता है, कि राइट. प्रेगनेंसी में कर सकते हैं टैरो के नहीं, सो आपका क्या कहना है, कर सकते हैं कि नहीं? अरे इफ यू आर डूइंग योर कॉर्ड कटिंग प्रॉपरली, बिलीव मी यू कैन डू इट. हम्म इट्स अ मिथ कि आपको नहीं करना चाहिए, यू कैन डू इट. हम्म एंड बीन देयर डन दैट, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ. एंड या टच वुड, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बेबी, नो इफेक्ट ऑन द बेबी. इनफैक्ट जो आप सीख रहे हो ना,
कुछ अच्छा ही सीख रहे हो। अगर आप सी, टैरो रीडिंग कैन बी मिस यूज ऑल्सो, वो हमें हम्म। एथिक्स में पढ़ाते हैं, राइट? सो इफ यू आर नॉट मिस यूजिंग एनी टूल, एनी एनर्जी रिलेटेड मोडालिटी, इट विल टीच यू समथिंग गुड ओनली। राइट। हाँ, मिस यूज करोगे तो उसके बहुत बहुत तरीके हैं मिस यूज करने के। बट इफ हम्म। यू विल नॉट मिस यूज, वो कुछ अच्छा ही सिखा देता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक माई डॉटर वो सीख के आई है इन अ वे। वो बॉन्ड स्पिरिचुअल होगी। मैजिकल। ओके। ट्रू ट्रू। तो जैसे आपने ये बताया दैट वी कैन डू दिस इन प्रेगनेंसी ऑल्सो, तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं, फीमेल्स स्पेशली, जो अपने आप को रोकते हैं कि नहीं अब नहीं कर सकते थोड़े टाइम बाद, बट उनको आई थिंक वो उनको एक गाइडेंस मिलेगी कि दे कैन डू, एंड अगर वो प्रॉपरली कर रहे हैं, एंड आई थिंक अगर वो करते हैं तो ये एनर्जी उनकी लाइफ को भी सॉर्ट आउट करती है। ये चीजें मोडालिटीज हमारी लाइफ को भी सॉर्ट आउट करती हैं और हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा लेके आती है। हमें भी नहीं पता होता राइट। कि हमारी खुद की सेल्फ हीलिंग भी साथ साथ ही हो रही है। सो ये एक प्लस पॉइंट है अबाउट दिस मोडालिटी। सो यू आर वर्किंग विद पेंडुलम डाउजिंग मोडालिटी also, right? So राइट। how can you help your clients with this modality? कैसे वर्क करता है, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सो पेंडुलम डाउजिंग, काफी काफी कम क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ पेंडुलम डाउजिंग के लिए आते हैं, काफी कम। दे कम विद अ मिक्सचर ऑफ अदर हम्म। मोडालिटीज, एक कॉम्बो डील में आती है ये चीजें यूजुअली। सो जैसे अभी आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, राइट। एंड लाइक व्हाट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग विद माय क्लाइंट्स इज टैरो रीडिंग के साथ साथ जस्ट, अगर मुझे भी समटाइम्स यू फील लाइक यार इसका यस आ जाना चाहिए, समटाइम्स यू जस्ट गेट दैट फीलिंग, अरे यार यस और नो है, कुछ भला हो जाएगा इसका, यार यस आना चाहिए। एंड देन हम्म। नो आ जाए तो आपका खुद का मन एक सेकंड के लिए नहीं मानता है कि अरे यार नो कैसे आया इसका। सो हम्म। देन अ डबल चेक गोज विद पेंडुलम। या। और फिर पेंडुलम ने भी ना बोल दिया, देन यूर लाइक अब तुम दिल पे पत्थर रखो कि बुलडोजर चलाओ, तुम्हें तो ना ही बोलना है। राइट। तो राइट। इट कम्स लाइक अ कॉम्बो डील। यू विल आइदर कंबाइन इट विथ योर टैरो रीडिंग, या अगर आपको हीलिंग करनी है, पेंडुलम डाउजिंग से हीलिंग भी होती है। जस्ट लाइक यू डू क्रिस्टल हीलिंग यूजिंग क्रिस्टल्स, यू डू पेंडुलम डाउजिंग से हीलिंग बाय जस्ट क्लेंजिंग देयर। बट ओनली हीलिंग विद पेंडुलम डाउजिंग अभी तक इतना हिट नहीं हुआ है पॉपुलैरिटी। पेंडुलम डाउजिंग मैंने देखा है लोगों को सिर्फ टू गेट देयर yes or no, और मे बी टू गेट देयर टाइम फ्रेम क्वेश्चन, कि हम्म। आप एक टाइम बता दो कौन से आसपास ये होगा। राइट। हीलिंग इतना नहीं हुआ है फेमस अभी तक पेंडुलम डाउजिंग में, राइट। बट एटलीस्ट मेरे पास नहीं आया है। सो सॉरी टू अदर हीलर्स, मेरे पास नहीं आए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपके पास आते होंगे, इट्स गुड। राइट। तो पेंडुलम बहुत एंशियंट टाइम पे यूज करते थे, ये बहुत मतलब कोई नई नहीं है तो पुरानी और काफी ज्यादा पहले यूज होती थी। अभी भी यूज होती है बट अभी ये स्नो या इन सभी चीजों में। एंड आई थिंक लोग अभी पेंडुलम को चक्रा हीलिंग में भी यूज करते हैं। सो मतलब इसका यूसेज बहुत जगह है, बट ये अभी फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा है। ये कह सकते बहुत हैं। बहुत लैक कर रहा है कंपेयर टू अदर मोडालिटीज। पेंडुलम डाउजिंग बेचारा एकदम बैठ गया है, वो राइट। बाकी सब एकदम हाई स्पीड पे भाग रहे हैं। राइट। आई बिलीव पेंडुलम डाउजिंग एंड रून्स, रून्स भी अभी तक इतना एक्सपोजर आया नहीं है लोगों को। नहीं आया, बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट अगर हम डीपली देखें तो काफी बेहतर है रूल्स की वेरी नाइस इट मोडालिटी। इज। राइट। एंड काफी प्रेडिक्शंस जो हैं वो भी काफी अच्छी हैं, सही भी होती हैं रूल्स की। बट बेसिकली थोड़ा टाइम फ्रेम की वजह से टाइम फ्रेम नहीं हम पता कर पाते रूल्स में ज्यादा। एक ओरेकुलर डिविनेशन टूल है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो लैग कर रहा है। लैक बट कर रहा है। टैरो में थोड़ा सा ज्यादा लोगों को ईज आ गया है अब, तो इसलिए टैरो की तरफ लोग ज्यादा भाग रहे हैं। बट चलो, जिसका जब टाइम आएगा वो फेमस हो जाएगा। ओके। So next is, like you have already mentioned here, that you are doing Akashic reading and healing. So just put a light on these, modality कि reading क्या है, healing क्या है, and इनका differentiation क्या है, और सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं या हीलिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आकाशिक के बारे में वो जानूं। ओके, सो आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये वर्ड ना काफी काफी कॉमनली अब यूज हो रहा है काफी। एज यू सेड, थैंक्स टू रील्स, काफी टॉपिक्स अपने आप
फ्रंट फुट पे आते जा रहे हैं. सो Yes. आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली इज अ बुक ऑफ योर रिकॉर्ड्स, जो Hmm. हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, सही सलामत ऊपर है, राइट. सो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग इज accessing that book. Now that book is not dependent on your form, it is dependent on your soul. आपकी सोल की किताब है वो, पूरे चट्टे पट्टे की वो किताब है. Hmm. एंड उसमें आपका प्रीवियस फॉर्म्स, फ्यूचर फॉर्म्स, सब लिखा हुआ हिसाब, जैसे हम कहते हैं कि ऊपर वाले के पास हिसाब है, बस वही हिसाब इज आकाशिक रिकॉर्ड्स. Right. Okay. So what akashic reading is that your person, the healer or the psychic will connect with the other side, the other energies. Okay. हमारे उसमें अलग लेवल्स हैं जिनको आपको अप्रोच करते करते यू विल रीच द लाइब्रेरी Hmm. जहाँ पे सबके हैं, एंड देन यू टेक एन एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट का आकाशिक का बुक. यू Hmm. डू रीडिंग, लिटरल सेंसेस में रीडिंग. यू विल आस्क द आकाशिक मास्टर्स कि आप मुझे इस चीज में हेल्प करो. क्लाइंट ने पहले परमिशन देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक क्लाइंट परमिशन नहीं देगा इसमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे आप. Hmm. ओके, एंड इफ यू आर क्लेमिंग विदाउट परमिशन, अगर आपने कर लिया तो आपने नहीं किया है. Okay. एज सिंपल एज दैट. आपने नहीं किया है. आइदर यू आर टेकिंग इट फॉर योर सेल्फ और यू आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, आई वुड से. Hmm. कि नहीं ठीक है ना, मैंने समझ लिया, मेरा लाइक यू नो जैसे मेरी मम्मी का ही तो है, ठीक है ना, परमिशन मिल गया, मैं कर लेती हूँ. नो, दैट डजंट वर्क. योर मदर हैज टू लिटरली गिव यू द परमिशन, आइदर बाय ऑडियोज में, जैसे बाय व्हाट्सएप में हम वॉइस नोट्स लेते हैं Right. क्लाइंट से कि वी आर एक्चुअली सेइंग दैट यस आई एम गिविंग दिस परमिशन टू सृष्टि टू ओपन माय आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंड देन वी प्रोसीड विद द प्रोसीजर. जब Hmm. तक परमिशन नहीं है ये सब नहीं होने वाला है. Okay. सो जैसे एज आई टोल्ड यू मिसयूज होता है मोडालिटीज का. आकाशिक इज वन मोडालिटी जो ज्यादा मिसयूज नहीं हो सकती है, बिकॉज वो एक्चुअल में आगे एक्सेस होगा ही नहीं जब तक सामने वाले का परमिशन नहीं. Okay. सो कंपेरेटिवली वो ज्यादा सिक्योर मोडालिटी है फॉर अ क्लाइंट. वो ज्यादा सिक्योर है बिकॉज साइकिक उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा. Hmm. बट वंस यू आर डन विद द रीडिंग, यू विल इन द रीडिंग यू विल कम टू नो द रूट कॉज ऑफ द इशू. कुछ Okay. बहुत रिपीटेटिव आपके इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ रिपीटेटिव कुछ फीलिंग्स हैं जो आपको हर चीज में यू नो बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है. Hmm. दैट इज व्हेन यू विल गेट अ कॉल, अरे यार ये क्या हो रहा है. Hmm. आप क्लाइंट है, आपको कुछ पता नहीं है, आपको एक ही सवाल आएगा, अरे यार ये क्या हो रहा Right. है, राइट. दैट इज व्हेन यू विल, देन यू डोंट इवन नो कि आपको आकाशिक करना है कि क्या करना है. बीइंग अ क्लाइंट यू विल जस्ट बी लाइक अरे यार कुछ तो कर, कुछ तो हो रहा है. Hmm. वंस द साइकिक डिसाइड्स कि चलो इसका आकाशिक करके रूट कॉज देखते हैं क्या हुआ है, Hmm. द साइकिक विल आस्क योर परमिशन. परमिशन मिला, रिकॉर्ड्स ओपन किए, रीड किया, रूट कॉज मिल गया. Hmm. रूट कॉज मिल गया, आपने उन्हें बता दिया, आप सेफली वापस एग्जिट प्रोसीजर लेके बाहर आ गए, Right. कन्वे कर दिया, सेशन डन. दैट इज रीडिंग. कि Okay. आपने सिर्फ रीड करके बता दिया कि ये रूट कॉज है, इस पे आप काम करो. Okay. ओके, लाइक पास्ट लाइफ में अगर आपको रिपीटेडली से कोई एक फीलिंग है, लाइक घबराहट है, हर चीज में आ रही है, इट इज नॉट नेसेसरी घबराहट उसी वजह से आ रही है, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल, कि आपको Hmm. एक बहुत फ्रीक्वेंट सी घबराहट और एक बहुत सिमिलर इवेंट से हमेशा आपको सिमिलर घबराहट आ रही है. ट्राई फॉर दीज रीडिंग्स. Hmm. एंड अगर आपको ये रीडिंग करके आपका सामने वाला अगर आपको बोल दे कि नहीं इट इज प्रॉपर, ये Right. आपका रूट कॉज था, आकाशिक में मिल गया, आप एक काम करो, जो आपकी नेबर थी वो आपकी प्रीवियस इसमें आपने उसको कुछ तो भी किया था, तो उसको जाके सॉरी बोलो एंड ट्राई टू वॉच योर सेल्फ फॉर दिस 10-15 days या क्या. सो वो Hmm. एक रीडिंग हो गया एंड उधर आपने फिनिश कर दिया. साउंड्स वेरी सिमिलर टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन बट इट इज नॉट. गॉट इट. पास्ट लाइफ में पास्ट लाइफ में एंटर करना होता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ जस्ट यहाँ पे सारी सिर्फ पास्ट बुक पर, करिए. राइट. सो दैट इज योर रीडिंग. अब हीलिंग पे आएंगे, तो आपने रीड कर लिया, हील कर लिया, अब उससे ही कनेक्टेड मास्टर्स के साथ मिलके, जो मास्टर्स आई टोल्ड यू आकाशिक मास्टर्स होते हैं, तो वहां पे इन सब के साथ मिलके ही आप उधर से इनको हील कर रहे हो. ओके.
ये एनर्जीज के साथ अटैच होके एंड वहां से आप हीलिंग उनकी स्टार्ट कर दे रहे हो. सो दैट इज आकाशिक हीलिंग. सो आकाशिक हीलिंग विल कम आफ्टर द रीडिंग बिकॉज आपको पता ही नहीं है रूट कॉज, तो आप कैसे किस चीज को हील करोगे. राइट. तो आई थिंक ये तो इनर कॉलिंग जब आती है, क्लाइंट आता है, तब पता हमें उसकी रीडिंग है जो भी हम कर रहे हैं उसके बाद पता चलता है कि इसको क्या करवाना चाहिए, इसको आकाशिक में एंटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. राइट. It just depend upon राइट, the reading वेरी of राइट. the client, right? And intuition also, वो विद right? एक्सपीरियंस भी आ जाता है, नहीं तो हमारा पेंडुलम डाउजिंग. वेन एवर इफ यू आर अ न्यू हीलर, यू आर इन डाउट ऑफ एनीथिंग, आस्क योर पेंडुलम कि करूँ क्या. सिंपल. Pendulum, right? So वहां पे वो जाके चेक, क्रॉस चेक कर सकते हैं. So you are doing so much modalities. So जब इनिशिएट किया था जर्नी और अब तक कुछ स्ट्रगल्स, कुछ डिफिकल्टीज मतलब हमें फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि हम न्यू होते हैं इस लाइन में. So what are the difficulties you have faced while interacting your clients, while doing or performing these services, and your experience relating to this thing? वन इज द एनर्जी ड्रेन. ओ गॉड. Hmm. वो जो उसके बाद जो हम पूरे ड्रेन हो जाते हैं ना, तो वन इज द एनर्जी ड्रेन. सेकेंड, टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट. 24 घंटा इज लाइक यार सिर्फ 24 घंटा हो जाता है. फ्रॉम 24 घंटा इट बिकम्स सिर्फ 24 घंटा. सो या, Right. एक टाइम है, एक आपका एनर्जी स्ट्रेन है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज योर ओन सेल्फ, योर ओन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स. कि आपको Hmm. लगता है जितने हो सके उतने क्लाइंट्स को मैं हेल्प कर लूं, बट देन खुद की भी एक लिमिटेशंस होती है. सो दो, दैट इज माई मेन स्ट्रगल व्हेन यू हैव टू लिटरली फील लाइक डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर अ क्लाइंट. And Hmm. but then you have to restrict yourself. नहीं, there is a way to do. नहीं कर There is a सकते. time frame. तेरे पास खुद के पास एनर्जी नहीं है, कहाँ तू दूसरे को एनर्जी देगी. So Hmm. yeah, those the low days have to be marked red in the calendar because खुद के पास ही नहीं है तो हम कैसे देंगे. So biggest Absolutely. struggle to me, very frankly, is खुद को high on energy रखना, तो ही तो दे पाएंगे. राइट. एंड इनिशियली ये चीज ज्यादा होती है. आई फेल्ट विद द टाइम यू विल लर्न कि कैसे खुद की एनर्जी को मेंटेन करना है, कैसे आगे काम अपना मैनेज करना है, कैसे क्लाइंट्स को मैनेज करना है. सो ये सारा विद द टाइम वी विल लर्न. सो सृष्टि, बहुत मजा आया आज आपसे कॉन्वर्जेशन करके, बात करके. वी हैव लर्न सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू मीनिंग्स फ्रॉम यू. सो इस कॉन्वर्जेशन को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे कल के एपिसोड में भी, एंड जो कि टेलीकास्ट होगा टुमारो सेम टाइम 7:30 PM, एंड सैटरडे को हमारे यूट्यूब चैनल पे ही. सो सृष्टि, बिफोर साइनिंग ऑफ, हम चाहते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम के बारे में, उनका नेम ये सब आप बता दो, so that if anybody wants to consult with you for any kind of service, so they can contact you over there. Okay, my Instagram handle comes with the name Srishti Vitality. पर्पल Hmm. कलर का सिंबल है, एंड विद अ नाइस पिल्सबरी का बॉय स्टैंडिंग लाइक दिस इन माय लैंग्वेज. एंड या, आई एम देयर एक्टिव. डीएम्स पर है. आप काजल के चैनल पे भी यू विल फॉलो अ लॉट ऑफ गाइडेंस. सो आई बिलीव पहले आप जज कर लो, गाइडेंस ले लो, एंड देन यू डिसाइड वट एवर योर कॉलिंग सेज कि आपको किसको कंसल्ट करना है. नेवर Yeah. कंसल्ट इन एनी हरी मोमेंट, वेरी फ्रैंकली. Yes, and सृष्टि का जो इंस्टाग्राम आईडी है, उसका जो लिंक है, will share it in the description box. So just go and follow her, and book your consultations from her. So Srishti, nice to talk to you. And guys, ये था फर्स्ट एपिसोड नंबर 8 पार्ट 1. एंड सृष्टि हमारे साथ है फ्रॉम मुंबई, एंड यही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में. सो जिसने ये पूरा नहीं देखा है वो प्लीज ये एपिसोड तो पूरा देखें, एंड कल वाले एपिसोड को भी मिस ना करें, बिकॉज कल और ज्यादा एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है फ्रॉम सृष्टि. सो वी विल सी यू ऑल टुमारो एट सेम टाइम, एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय सृष्टि. बाय बाय, कीप ग्लोइंग.